So this is session in the series, which you've been watching already. So it's a Tuesday session. Governments also frequently subsidize local industries to help them compete in the global market. So first question is, do we really know that, subsidize means to give something at a lower cost? Okay. अब कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकती है सब्सिडी. वैसे तो हमें डिस्काउंट मिलता है, बट अगर वही डिस्काउंट गवर्नमेंट दे रही है तो उसको सब्सिडी बोलते हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. दैट्स व्हाई ऑलवेज द वर्ड विल बी सब्सिडी. ठीक है, अगर गवर्नमेंट है तो सब्सिडी होगा, डिस्काउंट नहीं होगा. मीनिंग सेम है, मतलब यही होता है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बट इट्स अ डिफरेंट टर्म फॉर गवर्नमेंट. टू हेल्प देम compete in the global market, subsidies come dash टैक्स क्रेडिट्स और डायरेक्ट पेमेंट्स. अब कम के साथ कौन सा वर्ड लगता है? आपने अगर देखा हो, so come apart from tax credits or direct payments in the form of tax credits or direct payments, through tax credits and direct payments, as well as. अब कौन सा वर्ड आपको बेस्ट सूट कर रहा है इसमें से? आपको सूट करके देखना है. सब्सिडीज कम apart from tax credits or direct payments. The most commonly used are farm subsidies, are In the subsidies form of, in the form of which looks much better. Okay, this dash the products cheaper dash when shipped overseas. This makes the products cheaper. This allows the product, allows के साथ टू होते हैं. This promises, this besides, this makes. उनको बना रहा है, उनको सस्ता कर रहा है वो. Products cheaper dash when shipped overseas. Despite, however को कॉमा चाहिए, 10 को कॉमा चाहिए. डिस्पाइट आता नहीं है बीच में, तो हम बोलेंगे even when shipped overseas. Listen to this again. Thus, however, they both require a comma before we use them in the middle of a sentence. So I hope you've got that. But यहाँ पे कॉमा नहीं लगा हुआ तो ये मैंने कर दिया कैंसर. And then despite मोस्टली बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, तो हम इवन लगा देंगे. इवन का मतलब भी, ऑल्सो. ओके, कि उनको चीप कर देता है जब उनको हम ओवरसीज भी शिप कर. ठीक है, सो लाइक he's just adding another point there. That's what he's trying to say. So let's keep moving further. I'll just erase this all. Okay, उसके बाद this method works best for countries that rely mainly on exports. Full stop. Dash sometimes subsidies can have opposite effect. Dash sometimes. Therefore, unless besides on the contrary. So therefore तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो वो बेस्ट बोल रहा है और यहाँ पे आके वो ऑपोजिट इफेक्ट की बात कर रहा है. इसका मतलब जो सेंटेंस है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, अब वो ऑपोजिट जा रहा है. तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. ठीक है, सो ऑपोजिट के लिए कौन सा सूट करेगा बेस्ट? on the contrary. सुंदर तो यही लग रहा है. Okay, so let's keep it this way. The Agricultural Adjustment Act of 1933 allowed the government to pay farmers dash to grow crops or livestock which let their fields rest and regain nutrients. अगर आपको साइंस पता हो तो साइंस कहती है कि अपने फार्म को खाली छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो कि उसके न्यूट्रिएंट्स नेचुरली वापस आ सकें. ठीक है, सो विच लेट देयर फील्ड्स रेस्ट. अब रेस्ट मतलब कोई क्रॉप नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फार्मर्स, गवर्नमेंट टू पे फार्मर्स नॉट टू ग्रो, है ना, कि नहीं ग्रो करना है. ठीक है, सो दिस वे वी गॉट ऑल ऑफ देम राइट. वी विल कंटिन्यू फर्दर एंड आई होप आई हैव सेलेक्टेड द हार्ड पार्ट. नहीं, हम सिर्फ हार्ड वाली करेंगे. ओके, we are on Shanghai, upholding the motto of integrity, vision, academic excellence. Shanghai International School, ये university है, is an internationally recognized dash academic institution distinctive for its multidisciplinary blah blah blah. Okay, comma लगा हुआ है. Universal, amiable, prestigious, dishonest. अब देखो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं,
तो इनमें से कौन सा वर्ड अच्छा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी के साथ? इट शुड बी प्रेस्टिजियस, ठीक है। प्रेस्टिजियस मतलब होता है जो काफी मतलब सम्मान वाली होती है, लाइक यू नो रिस्पेक्टेबल, बोलेंगे प्रेस्टिजियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देन इट सेज drawing on our strengths in multi-language programs and comma dash responding to national and regional strategies as of with while ing लगा हुआ है गाइस, ing बोलता है कौन आऊंगा मैं, while responding, ओके। with responding to, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है with भी, drawing on our strengths, maybe I'm still gonna stick to while, okay. Then we are here as academic think tanks to provide advisory services on language policies dash diplomatic strategies and global public opinion of China. Countries diplomatic strategies, countries, cities, university. अच्छा, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज का मतलब पता है? नहीं पता ना, ओके। सो ये जो डिप्लोमेटिक होता है ना, ये भी गवर्नमेंट का टर्म है, सरकार करती है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से बात कर रही है ना, चाहे उसको फिर भी पसंद नहीं करती फिर भी उसके साथ डील कर रही है, देन वी से डिप्लोमेटिक, ठीक है। तो अब डिप्लोमेटिक के साथ क्या आएगा, कंट्री आएगा कि यूनिवर्सिटी आएगा? मैंने तो आपको हिंट ही दे दी, Country. कंट्री। Then 56 countries and regions and have dash close connection with international organization and have dash close connection। आप connection को क्या करते हो? डिसआर्म, डिसआर्म का मतलब होता है हथियार फेंक देना। डिस्प्लेस, ये नेगेटिव बात तो क्या ही नहीं रहा है। कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को हम क्या करते हैं? Maintain. There you go, you got your answer, ठीक है। सो ये देखो, ये मैंने क्या कहाँ से लगाया मैंने रूल, यहाँ से। मेरे को पता था शॉर्टकट है, लिख लो कॉपी पे अगर आपको लिखना है कि वाइल, आजकल एग्जाम में आ भी रहा है कि वाइल के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, आईएनजी। शॉर्टकट हो गया ना, साथ के साथ ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किए हुए हैं ये ना पहले भी, तो थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, ma'am. थोड़ा डिफिकल्ट लग भी सकता है बिकॉज दीज आर रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो we are discussing, this lesson is all about discussing and learning that Sigmund Freud became a major intellectual presence in 20th century culture is not in doubt। ये कोई बंदा है ना, फेमस हो गया, इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट, जो पढ़ा लिखा होता है। Dash, is there any doubt that at all times there was both blah blah blah? Dash is there, otherwise is there, yet nor is there this over this। अच्छा, nor जब लगता है nor, तो उसको नीदर भी चाहिए, है ना। सो वो तो आएगा नहीं। सोच के बताओ, अदरवाइज ये तो लगेगा नहीं। येट इज देयर एनी डाउट दैट एट ऑल टाइम्स, नेवरदलेस इज देयर टाइम एट ऑल टाइम्स, अदरवाइज। थोड़ा डिफिकल्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको कहेंगे भाई तू वेट कर, मैं बाद में आता हूँ, तो हम आगे चलेंगे। बट द एग्जैक्ट Good morning, sir. गुड Sir, मॉर्निंग, somebody talking, you can mute, I am muting actually all of you। टॉकिंग क्लास नेक्स्ट 15 मिनट में होगी, ओके, आधे घंटे में, ओके। बट द एग्जैक्ट मीन्स डैश Freud became, despite this hostility,
a master of intellectual life, but the exact means, अच्छा, means by By which, ठीक है, ये फ्रेज है, मतलब कॉलोकेशन नहीं है ये ना, ग्रामर फ्रेज है, जैसे गई भैंस पानी में हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो वैसे ये कुछ कहावतें होती हैं, लाइक दिस इज हाउ दिस से, बाय विच, मींस बाय विच फ्यूड बिकेम, ओके। हॉस्टिलिटी बता दो बस एक बार, इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रामर भी तो करनी है ना, साथ साथ में वोकैब भी करनी है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत, ओके, लड़ाई, गुस्सा, दैट्स हॉस्टिलिटी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट में जाते हैं। Freud emerged as a 20th century icon without the endorsement and support dash an institution or a profession. Support कहाँ से, तो क्या लगाओगे, विदाउट दी सपोर्ट, ये सब छोड़ दो, बस इतना, विदाउट दी सपोर्ट डैश इंस्टीट्यूशन, इतना सोचो। दोबारा से करते हैं, बड़े वर्ड्स हटाओगे ना। अब बताओ, सपोर्ट छोड़ दो, यहां से करो, सपोर्ट डैश इंस्टीट्यूशन, क्या अच्छा लग रहा है, कोई सेंटेंस बना के देखो, सपोर्ट वर्ड यूज करो कि मुझे उसकी सपोर्ट नहीं चाहिए, इंग्लिश में कैसे बोलोगे, कोई एक जाना करके बताओ, कम ऑन रणबीर। with an institution, support with. ये बोलो कि मुझे उसकी सपोर्ट नहीं चाहिए, या हाँ हाँ प्रिया, शी इज लाइक ओके लेट मी आंसर, ये हु इज अ यूजर हियर, जस्ट अ यूजर। देखो क्लास में 11 बच्चे हैं, चेतन है, कुलदीप है, प्रिया है, रमन इज देयर, रणबीर इज देयर, रविंदर, शरणजीत, श्रेया, सुखप्रीत, एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट। मैम 4 नहीं शरण, ऑफ हाउस, विदाउट द सपोर्ट ऑफ, of an. Okay. ठीक है। बाकी मतलब मेरे को वो स्टूडेंट बताओ कौन है, देखो मैडम बड़ी कब्बी है, मैडम रिमूव भी कर देंगी क्लास चो, अगर आप बताओगे नहीं आप कौन हो, विल नॉट स्टे इन द क्लास, यू रियली नीड टू टेल मी। One of the principal aims of this book is to show how this happened in one local blah blah blah, then as now a university town stranded in the English fence with a relatively small dash population. Small dash population. कोई guess? Small dash population. Amount. फिर उसके साथ तो small amount of population होना चाहिए था, है ना। अब वो ये कह रहे हैं कि population जो है वो थोड़ी लेवल पे कम हो रही है, लाइक लेस चेंजेस आ रहे हैं उसमें। नाउ व्हाट वुड यू से, Fluctuating. with a relatively small fluctuating population. Good. So यहाँ पे nor आना है, nor is there any doubt that all times there was both fervent over to his ideas and influence. नहीं, nor, what's the meaning? No. And not. अच्छा, this is a new thing to learn. So ये बोल रहे हैं कि nor, एक तो हम लगाते हैं neither nor, है ना, good grammar to learn। एक अगर पहले भी किसी चीज में नॉट लगाओ तो नेक्स्ट सेंटेंस में भी आप एंड करके नॉट आपने बोलना है, तो उसकी जगह पे आप नॉर कह सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा ना, कल्चर इज नॉट इन डाउट, नॉर इज देयर एनी डाउट, ठीक है। तो ये कनेक्शन यहाँ था। आर वी गुड? सो वी ऑलवेज नीड टू नो वेयर वाज योर आंसर। आर वी हैप्पी नाउ? सो ये आपको फ्रेज बता दी कि फ्रेज होती है, ये लर्न कर लो। अगर आगे भी नॉट है और पीछे भी नॉट कहना हो तो उसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं, नॉट ऑफ, सपोर्ट ऑफ लर्न करो, कॉलोकेशन है बच्चे, सपोर्ट ऑफ। अगर आप कॉलोकेशन की लिस्ट नहीं बना रहे हो, स्टार्ट मेकिंग इट टुडे बिफोर इट्स टू लेट, ओके।
बाद में मत बताइयो कि मैम आपने कुछ कराया नहीं. आई एम डूइंग इट एवरी डे. Maybe you are watching this video or you are live in the class. I'm saying start making a collocation list. In every video, there are 5 to 10 collocations discussed. Keep writing them down. After 10 videos, you probably will have 50 collocations or 100, which is enough to pass the test. Okay. हाँ, फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन पे आते हैं. स्मॉल फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन जो ये जो वर्ब होते हैं ना, इनकी बात करते हैं. ये जो पॉपुलेशन है ये नाउन है. ठीक है. नाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव. इसकी क्लास नेक्स्ट वीक होगी ट्यूसडे, उसमें भी बताया जाएगा. नाउन के साथ लगता है एडजेक्टिव. ओके. नन प्लस एडजेक्टिव. नाउ इसमें से एडजेक्टिव कुछ भी नहीं, ये तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये नाउन है. तो नाउन का तो नाउन के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता ना, एंड लगाना पड़ता, लाइक राम एंड श्याम. तो वी से नाउन एंड नाउन, वी कांट से राम श्याम. वैसे ही हम पॉपुलेशन और फ्लक्चुएशन नहीं कह सकते, तो ये तो कैंसिल हो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कैंसिल हो गई. अब आईएनजी और ईडी जो होते हैं ये दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. फ्लक्चुएटिंग भी एडजेक्टिव बन जाता है, फ्लक्चुएटिंग भी एडजेक्टिव बन जाता है. तो हमने यहाँ पे आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि देवर टॉकिंग अबाउट कि आगे भी होगा, तो फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन. ठीक है. नॉट विद ए रिलेटिवली स्मॉल फ्लक्चुएटेड पॉपुलेशन. नाउ की बात कर रहे हैं ना, तो लाइक अ लिटिल प्रेजेंस में, प्रेजेंट में था, तो वी सेड इज भी है. देखो अगर आप हिंट देखो, दैट्स व्हाई वी यूज्ड आईएनजी. ठीक है. सो थोड़ा सा वी नीड टू नो सम ग्रामर. लेट्स कीप डूइंग. लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. Populations can change through 3 processes: fertility, mortality and migration. अच्छा, समझते हैं पॉपुलेशन का मतलब एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं. हम ये 3 वर्ड्स को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, कहीं भी काम आ जाएंगे. फर्टिलिटी का मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. ठीक है. मोर्टेलिटी का मतलब कितने लोग मर रहे हैं. अब किसी कंट्री में 1000 लोग मर गए तो पॉपुलेशन तो चेंज होगी ना. अब कितने लोग आ जा रहे हैं. जैसे इंडिया की पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, उतने ही मर रहे हैं, उतने ही पैदा हो रहे हैं, उतने ही छोड़ के जा रहे हैं देश. ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कम आ रहे हैं, कम पैदा हो रहे हैं, कम मर रहे हैं. सो पॉपुलेशन कम है. सो दैट्स कॉल्ड, दीज आर द 3 reasons of population. Fertility is dash the number of children that women dash and differs from blah blah. Okay. Fertility dash the number of children. Fertility contributes. अच्छा, contribute के साथ लगता है to. ठीक है. Fertility requires, involves के साथ लगता है in. है नहीं ना कहीं पे भी. Rotate. Fertility requires the number of children. Fertility rotates the number of children. उसके बाद children that women dash. women क्या करेगी children को? Easy है. that women have, है ना. अब रेयर क्या करते हैं हम लोग, हम बच्चों को बड़ा करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेज चिल्ड्रन. ठीक है. ये वोकैबुलरी है. तो रेयर हम एनिमल्स को करते हैं, कहते हैं चारते हैं, हर्ड करते हैं. सो रेयर. ओके. एक रेयर होता है पीछे वाला, एक होता है उनको चारना. सो इनमें से रेयर तो नहीं आएगा, बच्चे हैं चारने थोड़ी हैं. ठीक है. इक्विप होता है उनको स्किल देना, उनको टूल्स देना. अभी तो पैदा कर रहे हैं हम लोग, सो पैदा होने की बात हो रही है, तो वी विल से हैव, होंगे, वुमेन हैव. फिर ओके देन, या जो डेमोग्राफर्स मोस्ट कॉमनली स्टडी मोर्टेलिटी यूजिंग लाइफ टेबल. मोर्टेलिटी मैंने बता दिया ना कितने लोग मरते हैं. सो डेथ, a statistical dash which provides information about the mortality conditions. अब टेबल है तो वो statistical क्या होगा? A statistical dash which provides a statistical device, a statistical means. क्या होगा ये?
A statistical dash which provides information about the mortality conditions. Study. रिसर्च रिसर्चेज है वो रिसर्च वो तो सीधा ही कैंसिल हो गया ना, क्योंकि इसमें लगा हुआ है ए, तो ए के साथ तो 1 आना है ना। चलो छोड़ दो, आगे चलते, क्या पता लिखा हो कहीं पे, we might get lucky to find the answer. ऐसे देखते जाओ, provides blah blah blah, migration, region, place, migration do not designate movements as migration, comma, अब comma है, ये ध्यान में रखना है, dash, they are somewhat permanent. Migration researchers do not designate movements as migrations, dash, they are somewhat permanent. तो अब कंडीशन है कि वो उसको तब तक माइग्रेशन नहीं कहते जब तक कि वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है। तो मेरे को तो लग रहा है कि अनलेस दे आर समवट परमानेंट आएगा, जब तक, अनलेस मीन्स जब तक, ओके, कंडीशन है। सो I'd say that then migration typically do so through census data on place of dash, indirect sources of data including tax forms on the place of, प्लेस किसकी होगी, ऑन द प्लेस ऑफ, हम लोग रहने की बात नहीं कर रहे, लाइक वी आर, रेजिडेंस में हाँ इट शुड बी रेजिडेंस, बिकॉज वी आर प्योरली टॉकिंग ऑफ लिविंग, है ना, घर का जगह की बात हो रही है ना, तो माइग्रेशन की बात हो रही है, तो इट शुड बी रेसिडेंस। अक्रॉस द वर्ल्ड, comma, dash students with initial training in social sciences. Demography today is widely taught in many universities across the world. Dash students with, अब आंसर क्या मैच करेगा, जो भी वर्ड यहाँ पे होगा तो हमें विद के साथ वर्ड मैच करना है, ओके। रिसर्चिंग स्टूडेंट्स विद इनिशियल ट्रेनिंग, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स विद इनिशियल ट्रेनिंग, analyzing students with initial training in social sciences, exploiting students. हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, अट्रैक्ट एक्सप्लॉइट तो नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, तो विद के साथ, एक्सप्लॉइट विद, एनालाइज विद, अट्रैक्ट विद, रिसर्च विद, सो यू हैव टू हैव अ कोलोकेशन, इट्स अट्रैक्ट विद, है ना, अपने जाल में बिछाना। अभी यहाँ पे आते हैं, मीन्स क्यों नहीं आया, क्योंकि मीन्स के साथ एस लगा हुआ और मीन्स के साथ ऑफ लगता है। फिर एक और था प्लूरल, रिसर्चेस क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भी क्या था, प्लूरल। स्टडी ये है नहीं है क्योंकि ये टेबल है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये टेबल की बात हो रही है, तो टेबल स्टडी नहीं होती, टेबल एक टूल होता है, टूल की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया वर्ड, डिवाइस, ठीक है। आई वॉज वेरी होपफुल, कोई ना कोई तो बोलेगा बट नहीं बोल पाए। अब यहाँ पे क्या आया, फर्टिलिटी इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट द वुमेन हैव एंड डिफर्स फ्रॉम फेकुंडी, व्हाटएवर इट इज, फेकुंडिटी, ओके, इन्वॉल्व्स, दैट वन वाज अ बिट हार्ड। कंट्रीब्यूट टू होता है, रोटेट तो लग ही नहीं रहा था यहाँ पे, रिक्वायर भी नहीं लग रहा था, तो यही बचा, इन्वॉल्व्स ही बचा, वैसे इन्वॉल्व्स इन भी होता। आर वी गुड, मूविंग ऑन फर्दर। So those who are aiming to get 8 each, इनके साथ गाइस फ्रेंडशिप कर लो, ये क्वेश्चंस के साथ प्यार डाल लो। अगर आपके ये क्वेश्चन सही होने शुरू हो गए ना, आपके प्रैक्टिस में नहीं होंगे 100% सही, बट इनको जितना आप ज्यादा करोगे इतना आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। फॉर 8 each स्टूडेंट्स एंड 7 each के लिए बहुत प्रेशर नहीं है, बट अगर आपके 4 क्वेश्चंस 5 हैं, जैसे इसमें 4 हैं, अगर आपके 3 भी सही हो रहे हैं, 2 भी सही हो रहे हैं तो भी चलेगा। लाइक मैंने ये देखा है मॉक टेस्ट में, आई हैव सीन स्टूडेंट्स इतने तुक्के लगा रहे हो आप लोग, आपका 0 भी आ रहा है, वो 0 तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। alright, our analysis of the genetic structure of northern spotted owls can attract across most of the range of sub, so ये owls की बात कर रहा है, उल्लुओं की बात कर रहा है, बायो में चले गए हम, ठीक है। आपने एक चीज नोट की, फर्स्ट स्टेप में क्या करती हूँ हमेशा मैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आई रीड,
क्योंकि मेरे को कनेक्शन भी तो बनाना है ना, आई हैव टू मेक अ कनेक्शन विद द पैराग्राफ। आई नीड टू नो कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, कौन से किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। अब जब कनेक्शन बन गया, मेरा सीधा इंटरेस्ट है ब्लैंक का, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ उसके आसपास पढ़ती हूँ पहले। जैसे although no dash genetic breaks were found in northern spotted owls, no dash breaks, अब no definite breaks, no rare break, no distant break, distinct genetic breaks were found। अब जेनेटिक की बात हो रही है, जो हमारे जीन्स होते हैं ना वो यूनिक होते हैं ना, तभी उनको जीन्स बोलते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं डिस्टिंक्ट पे टिकूंगी, ये मैंने ग्रामर ने यूज की, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया। मेरे को पता है कि जो जीन्स होते हैं इंसान के, वो उसको अपने भाई बहनों से भी डिफरेंट बनाते हैं ना, यूनिक बनाते हैं। इसलिए मैंने कौन सी कॉन्सेप्ट यूज किया, डिस्टिंक्ट। कोई ग्रामर नहीं थी इसमें, जस्ट यूज द वर्ड डिस्टिंक्ट। फिर कॉमा लगा हुआ है, ध्यान में रखना है। Genetic breaks were found in northern spotted owls. Dash landscape features were important in structuring genetic variation. Dash landscape features. Few landscape features, several landscape feature, much, many. देखो, much, several, many, इनमें से डिफरेंट बनाओ, डिफरेंस बताओ इनका क्या है। एक मिनट के लिए like for 1 minute, you know what we do, let's move on and let's solve the rest of it, and we'll come back to it later. Okay, it's a very simple question, but I want you to focus on the rest and I'll teach you what it is. इसको elimination method करके I'll tell you. मैनी काउंटेबल चीजों के साथ लगता है ना। Several, you're doing good, you're close to your concept, but several किसके साथ लगता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, विल कम टू दैट। While the lower Oregon coast range dash gene flow acting as a genetic corridor, पीछे से आना पड़ेगा कि ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, जीन फ्लो को। अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये अलाउ करेंगे ना, वाइल लगा हुआ है, ऑपोजिट होगा ना, एक चीज रोक रही है, दूसरी चीज उसको अलाउ करेगी। तो अलाउ का एक भाई बड़ा है यहाँ पे, देखो, एबल। एम्बल्ड। हाँ, इनेबल मतलब टू मेक एबल, अगर आपको नहीं पता तो इनेबल मतलब उसको मेक एबल करना, उसको एबल करना, तो वी विल से इनेबल्ड। ठीक है। फिर द कोलंबिया रिवर डिड नॉट एक्ट एज अ बैरियर, तो बैरियर रोक रहा है, कॉमा डैश आउल्स रेडिली फ्लाई ओवर दिस लार्ज रिवर, मतलब वो बैरियर नहीं बनी तो उसने उनको लार्ज रिवर तक फ्लाई करने दिया। तो क्या लगाओगे? प्रपोजिंग आउल्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है दिखाना, डिमांड करना, सजेस्ट करना, और तो कोई ब्लैंक ही नहीं है, शाबाश। सो या तो दिखा सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं। स्पॉटेड एंड डेमोन्स्ट्रेट कह सकते हैं। अब हम इसको आंसर करते हैं, लेट्स सी इफ वी आर रॉन्ग, है ना, सजेस्टिंग और या आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड देयर। तो हम यहाँ आते हैं, few, several, much, many। several का मीनिंग देखो, सेवरल। more than two but not very many। ठीक है। सो इट वाज अ वेरी क्लोज क्वेश्चन, few तो आना ही नहीं था। ठीक है, देखो, breaks were found in northern spotted owls, dash were important in structuring genetic variation, features, dash features were important, है ना। तो काफी फीचर्स, हम बोल रहे हैं ना, काफी फीचर्स जो है वो चाहिए थे, फीचर्स, फीचर्स। ठीक है, तो फ्यू तो आना नहीं है, काफी सारे। आप सेवरल, मच, मेनी, मच तो हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि मच जो है वो काउंट नहीं करता, वो मेजर करता है।
तो ये कैंसिल हो गया। फ्यू हमने तो कर दिया क्योंकि हमें चाहिए तो ज्यादा ही। और मैनी और सेवरल में क्या फर्क है? मैनी और सेवरल में दो तरह का फर्क है। ये सेवरल का मतलब होता है काफी, बट बहुत ज्यादा नहीं। 50, ये आपका 100 है, ये आपका 50 है, ये आपका 0 है। तो सेवरल इधर रहता है, मैनी इधर रहता है। अगर 50% से कोई चीज ज्यादा है तो वो मैनी है, 50% से कम है तो वो सेवरल है। ऑल्सो देर इज वन मोर डिफरेंस। जब हम बहुत सारी वैरायटी की बात कर रहे हैं, अगर तो वो बोलता है मैनी डिफरेंट, तो सही था। सेवरल का मतलब होता है मैनी डिफरेंट। ठीक है। सी दिस इज ऑल्सो समथिंग न्यू आई एम लर्निंग। सो आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेवरल एंड मैनी। एक तो सेवरल मैनी से कम होता है, बट दूसरा सेवरल का मतलब होता है तरह तरह के, वैरायटी के। तो मैनी का वैरायटी से कोई लेना देना नहीं है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट वैरायटी। वैरायटी का मतलब कहाँ से पता चला? क्योंकि वो जीन्स की बात कर रहा है ना, तो एवरी जीन इज डिफरेंट, दैट्स वाई। ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिंग नहीं आएगा, दिखाना नहीं आएगा। सजेस्टिंग आउज रेडिली फ्लाई, मतलब कि ये जो बात कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, ये बता रही है कि वो सजेस्ट कर रहा है, वो इट्स सेइंग कि वो होना चाहिए। इट वाज अ डिफिकल्ट वन, यही हार्ड है। चलो ठीक है, काफी हो गए क्या? नहीं, एक और हो जाएगा। ओके, now try to answer this question. In dash that, brain cells in dash that could help engineers. फाइंडिंग्स और और भी है कोई? दो, मैं कंफ्यूज, रिजल्ट्स भी आ सकता है शायद। रिजल्ट इन होता ना, या एज ए रिजल्ट होता है? डिसीजंस। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। एज। हम्म। और लगा हुआ है तो नीदर तो नहीं आएगा, नीदर के साथ नॉर होता है, और नहीं होता। दैट, सॉरी, इफ आएगा। हाँ, ये दैट। अच्छा, यूजर भी यूजर कौन है भाई? पहले तो ये बताओ। सुखजीत मैम। ओ अच्छा, सत श्री अकाल सुखजीत। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾर्डिंग ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ मैं कुछ बोली। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात गुड मॉर्निंग मैम। नहीं। गुड मॉर्निंग। Food searching is an example of goal directed behavior dash which an employee must integrate information about dash which, इसके साथ भी एक ही वर्ड फिट होता है। शाबाश। टू आएगा मैं। नहीं, ड्यूरिंग विच। देखो, कॉमा लगा हुआ है। हम्म। एक मिनट, मेरी
कॉमा के साथ हम लोग आईएनजी वर्ड फिट कर लेते हैं, और ड्यूरिंग विच इज मोर लाइक अ collocation, using the dash possible components. The dash, द के साथ एक रूल, ये नहीं लगते, या तो ये लगेंगे या ये लगेंगे, ठीक है। द के साथ थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगता है। अब पूछोगे थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने बोला स्मार्ट, स्मार्टेस्ट, द स्मार्टेस्ट बॉय, ए स्मार्ट बॉय, द स्मार्टेस्ट बॉय, ए क्लेवर स्टूडेंट, द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट, ऐसे एस टी वाले, तो द लीस्ट पॉसिबल कंपोनेंट्स, राइट। What goes on in our brains when we dash complex behavioral decisions? Decisions को हम क्या करते हैं कि आंसर है भाई, हम decisions लेते हैं। एक ये तो इजी है ना, तो लिख लो टेक डिसीजंस, आ रहा है क्योंकि ये पहले भी किया हमने, so it was there, so take decision. Okay, last time, how just two neurons dash create a mechanism in an animal's brain, which our study reveals for the first time. How just two neurons dash create a mechanism? Easy है? कैन Can ही अच्छा लग रहा है, can create mechanism. Yeah, okay. Make decisions, अरे बाबा, behavioral decisions. Brains, when we make decisions, we take decisions. ये check करते हैं, fewest possible component. देखो कितना close इसमें few और least, at least. fewest अच्छा, पढ़ते हैं इसको। When goes in our brains, sorry, the principle of using dash possible components, counting हो रही है ना, the least की जगह पे हम लोग बोलते हैं at least, है ना, at least कम से कम, तो उसको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, fewest, the fewest मतलब मिनिमम नंबर, ओके। तो वही जैसे several और many था ना, वैसे ही ये है, जब हमने कम से कम कहना तो हम लोग बोलते हैं एट लीस्ट, है ना। सो फिर से fewest वाज अ वेरी ट्रिकी वन, गुड, बाकी सब सही हुए हमारे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं मेक डिसीजंस, टेक डिसीजन। make Okay, let's find out the difference between make decisions and take. I'll explain. तो मेक डिसीजन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, ठीक है। अब जब हमने ले लिया, वो ना एंड लगा हुआ है ना, एंड उसको बोलते हैं कैरी देम आउट। कैरी देम आउट का मतलब होता है टेक, ले लिया, फैसला ले लिया, उसको बोलते हैं टेकन द डिसीजन। जब हम बोलते हैं जल्दी जल्दी फैसला करो, तो हम वी डोंट से क्विकली टेक योर डिसीजन, वी से क्विकली मेक योर डिसीजन। टेक और मेक में इतना फर्क है कि मेक के बाद टेक आता है, तो ब्रेन में तो डिसीजन बन रहा है ना, जब चॉइस कर ली, ये देखो यहाँ पे भी आंसर था, बाकी छोड़ो, डिसीजन मेकिंग कहते हैं ना हम लोग, मेकिंग होता है, ये लो, छोड़ दो बाकी चीजें, सही है। Was a tricky one, sorry guys, I was not 100% there, but yeah, that was the answer.
This one was very tricky. मैम हाँ, बिकॉज और एज में क्या डिफरेंस है? ओ बहुत ज्यादा है। कहाँ है क्वेश्चन? ये है। ये बना जी। Snails because they search for letters. क्योंकि as मतलब जब वो कर जब रहे। हाँ, तो as और because का तो मतलब सिर्फ वही रहेगा, क्योंकि, रीजन। जो as है ये बहुत तरह से यूज होता है as। पता नहीं इसमें यहाँ पे दिया होगा कि नहीं। ये As. देखो, तो as के बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। is used to describe appearing to be like they were all addressed as clowns, है ना। फिर used to describe the fact particular job like she works as a courier, है ना। फिर comparing two people like he is, I respect him as a doctor, yeah, he is as good as me, है ना। So used to say that happens in the same way, the news came as a shock, है ना, ऐसे आई। So while else is happening, so as a child, so मतलब भी as का मतलब because भी होता है, but as का और भी काफी uses होते हैं। as is also ओके used as a connector sometimes, ठीक है। that's the difference, like because और as नहीं है आपस में, connected नहीं है। चलो, I'll just stop the recording